ہر ایک بچہ بڑا بزرگ چاہتا ہے کہ خدا کی قدرت اس کی زندگی میں سے نظر آئے. جس طرح ایلیا دعا کرتا ہے اور بارش نہیں ہوتی، جس طرح وہ دعا کرتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے، خدا کی قدرت میری زندگی سے بھی ظاہر ہو. جس طرح ایلیا دعا کرتا ہے آسمان سے آگ آتی ہے، قربانی کو چٹ کر جاتی ہے. ہاللیلویہ. جس طرح جناب خدا کی قدرت شاگردوں میں سے بہتی تھی، اس طرح مجھ میں سے بھی خدا کی قدرت بہے. تو یہ پتہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم خدا کی قدرت تک پہنچیں کیسے، ہم کیسے کنیکٹ ہو جائیں اس سے، ہم جڑ کیسے جائیں. اور ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع کے لہو میں قدرت ہے. یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. وہ دیوار جو گناہ کی دیوار کئی دفعہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے اور ہم خدا تک نہیں پہنچ پاتے، وہ یسوع کے لہو کی قدرت مجھے اور آپ کو دھو دیتی ہے. ہم پاک ہو جاتے ہیں اور ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یسوع مسیح کے نام کی قدرت کے بارے میں سیکھا تھا. یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے اور اس نام پر ہر ایک گھٹنا جھکنا ہے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے والوں کا. پھر ہم نے کلام کی قدرت کے بارے میں سیکھا تھا. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو جانیں گے، کلام پر ایمان رکھیں گے. کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. تو کلام کو سننے کے مواقع کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. کلام کو سننے کے مواقع کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ سست ہو جائیں. ایک طرف کلام سننے کے لیے عبادت کا دعوت ہے، دعوت نامہ ملا ہوا ہے، دوسری طرف سستی آ رہی ہے. سست نہ ہو، کلام سنیں، کیونکہ کلام ہی مجھے اور آپ کو دلیری دیتا ہے، آزاد کرتا ہے اور بحال کرتا ہے. لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج پھر ہم نے سیکھا تھا روح القدس کی قدرت کے بارے میں. آج اس میں ہم اور آگے بڑھیں گے. یہ دن عید پینتیکوس کے دن ہے. اگلا اتوار 23 مئی کا اتوار جو ہے وہ عید پینتیکوس کی عید بھی ہے. تو ضرور آپ خداوند کے ضرور دعا کریں کہ خداوند مجھ پر رحم کر اور مجھے روح القدس سے بھر دے. آج ہم سیکھیں گے روح القدس میں ایک ہونے کے تعلق سے. روح القدس میں ایک ہونے کے تعلق سے ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. میرے عزیزو، ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم شخص روح القدس ہے. پوری دنیا میں کائنات میں سب سے اہم شخص آپ کے لیے، میرے لیے، کلیسیا کے لیے، دنیا کے لیے وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ روح القدس ہے. سب سے زیادہ اہم روح القدس ہے. اور بھی اہم لوگ ہوں گے لیکن کچھ ہوتے ہیں پریورٹائز، ترجیحات. سب سے اول درجہ، سب سے اول اہم ترین شخصیت جو ہے وہ روح القدس ہے. کیوں روح القدس اہم ہے؟ کیونکہ روح القدس کو خدا باپ نے اور یسوع مسیح نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے. آمین. آپ کو یاد ہے وہ وعدہ جو کیا گیا تھا کہ میں تمہیں کیا نہیں کروں گا؟ یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا باپ نے، خدا بیٹے نے روح القدس کو بھیجا ہے. اور وہ سب سے اہم شخص ہے میرے اور آپ کے لیے، سب سے اہم شخص. اور اہم کام کیا ہے ہماری زندگی میں؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں جی میرے کپڑے دھونے زیادہ اہم ہے، میرا کھانا پکانا زیادہ اہم ہے، میرا نوکری کرنا زیادہ اہم ہے. سب سے اہم کام جو ہے وہ روح القدس کا کام ہے. روح القدس کا کام اس دنیا میں سب سے اہم ترین کام ہے. کئی کہتے ہیں جی روح القدس کا کام سب سے اہم ترین کام ہے تو پھر ہمیں نوکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ سارے کام سیکنڈری ہیں. پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، باقی تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی. جب لوگوں نے روح القدس کے لیے اپنا پیش کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی
रुल उसके लिए दे दी तो खुदा की कुदरत उनमें से बह निकली, उन्हें कमी नहीं हुई। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह जब जजिया लेने वाले आए तो पतरस को यीशु मसीह ने कहा जा और मछली पकड़, जो पहली मछली तू पकड़ेगा उसके मुंह में सिक्का होगा और तू उसका आधा अपना और आधा मेरा जजिया दे देना। जब आप रुल कुछ से भरे हुए होते हैं, खुदा आपकी रूहानी आंखें खोलता है, आपको पता होता है कि मेरी जरूरत पूरी करने वाला वो कायनात का खालिक और मालिक है। आमीन। इसलिए रुल कुछ में एक होना बहुत जरूरी है। इब्लीस नहीं चाहता कि हम रुल कुछ पे एक हो जाएं। जिस तरह आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो चीनी जब घोली जाती है तो अलग अलग रहती है, वो एक हो जाती है। चीनी अपनी शिनाख्त खो देती है, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है और वो पानी की मानिंद बन जाती है, महलूल की शक्ल में चली जाती है। इसी तरह मुझे और आपको जब हम रुल कुछ से भरे हुए हों तो हमें अपना आप अपनी इंसानियत को खत्म करना है। हमें रुल कुछ की कुदरत से भरना है ताकि रुल कुछ हमारी जिंदगी में खुदा के जलाल को जाहिर करे। अहम तरीन काम जो दुनिया में है वो रुल कुछ का काम है, और अहम तरीन शख्सियत जो मेरे और आपके लिए है वो रुल कुछ है। सबसे अव्वल दर्जा आपकी और मेरी जिंदगी में रुल कुछ का दर्जा है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो पुराना अहदनामा खुदा बाप के कामों को बयान करता है कि खुदा बाप किस तरह काम करता है। फिर हम जब नया अहदनामा देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के काम जो हैं वो हमें नजर आते हैं। और रात को हम एक हवाला पढ़ रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि अगर सारी बातें जो यीशु मसीह ने काम किए, जो मौजज़ात किए, जो यीशु मसीह के हाथों से कुदरत वाले काम हुए, अगर वो दर्ज होते तो किताबें कम पड़ जाती। वो दर्ज नहीं है, लेकिन वो सारे काम यीशु के काम है। नया अहदनामा जो हमें बताता है, और मौजूदा जमाना जो है वो रुल कुछ के कामों को बयान करता है। आमीन, आमीन। आज जरूरत इस बात की है कि खुदा के बेटे और बेटियां रुल कुछ से भरे हुए दुनिया में खुदावंद यीशु की कुदरत का मुजाहरा करने वाले हों। आज जरूरत इस बात की है। पिछले दिनों हम खिपरों में थे और जब हम वहां पर मुनादी कर रहे थे, मुनादी करते करते जब हम यीशु मसीह के बारे में कलाम सुना रहे थे, एकदम पीछे से चीखने की आवाज आई। कोई तड़प रहा था, उसमें बदरू नाज़िल हो गई और हमने देखा कि लोग डर रहे हैं। फिर उसी इबादत में एक और कोने से चीखने की आवाज आना शुरू हो गई, एक और कोने से चीखने की आवाज आना शुरू हो गई। लोग डर कर उठ गए और वो इधर उधर हो गए। हमने उन्हें बताया कि आप डरे नहीं, यीशु के नाम में कुदरत है। और जब हमने यीशु मसीह के नाम से दुआ की, वो सारे बदरूहों से आजाद हो गए और सब यीशु के नारे मारने लगे। आमीन। आज सबसे अहम जरूरत यह है कि लोग रुल कुछ की कुदरत का मुजाहरा ईमानदारों की जिंदगी में से देखें। शागिर्दों के साथ क्या था? जब पतरस खूबसूरत दरवाजे पर जा रहा है तो क्या हुआ वहां पर? बाइबल में लिखा है कि वो जो भिखारी था, पहज, वो पतरस से भीख मांगने के मुंतजर था, वो भीख मांगने के चक्कर में था। और लिखा है कि पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। वो रुल कुछ की कुदरत का मुजाहरा कर रहे थे वहां पर। वो बता रहे थे कि जो कुछ हमारे पास है, आज हमारे पास क्या है? आज हम जब किसी के पास बैठते हैं, हम कई दफा नाउमीदी का बयान करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया की तमाम नाकामियों का बयान करना शुरू कर देते हैं।
हम ऐब जोई, गीबत गोई, चुगली का बारे में बात कर रहे होते हैं। जो कुछ आपके पास होगा आप वही किसी के साथ बयान करेंगे। पतरस कहता है जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए देते हैं, और उनके पास यीशु था, उनके पास रुल कुछ था और वो रुल कुछ ही दे रहे हैं। आज मुझे और आपको इस ख्वाहिश से भरने की जरूरत है, खुदा मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा रुल कुछ से भरना चाहता हूं। खुदा मैं चाहता हूं तेरे रुल कुछ की कुदरत के काम मुझ में से नजर आए। खुदा मैं बीमारों पर हाथ रखो, बीमार शिफा पा जाए। खुदा मैं चाहता हूं खुदा तेरा बेटा यीशु सर बुलंद हो, यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। तो मेरे अजीजों, मौजूदा जमाने में रुल कुछ के कामों को, जो मौजूदा जमाना रुल कुछ के कामों को बयान करता है, बाप ने बेटे को दुनिया के सामने जाहिर किया और बेटे ने रुल कुछ को दुनिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अन काले यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी हम 14वीं आयत से 5वीं आयत से हम 16वीं आयत तक की तिलावत करते हैं। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह रुल कुछ का तारुफ करवाते हुए बताते हैं कि वो आपकी रहनुमाई करेगा। रुल कुछ क्या करेगा? हमारी, वो हमें राह दिखाएगा। आप किसी इलाके में जाते हैं और आप कोई ऐसा शख्स तलाश करते हैं जिसे उस इलाके का पता है, ताकि वो आपको एड्रेस बता सके, आपको बता सके। कई दफा जब हम किसी से पता पूछते तो वो कहता है मैं खुद नया हूं यहां पर। रुल कुछ आपकी रहनुमाई करेगा क्योंकि उसे सब कुछ पता है। आमीन। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। कई दफा हमें कोई मशवरा मांगे तो हम अपनी तरफ से मशवरे देते हैं, कलाम कुछ और कह रहा होता है, हम कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है रुल कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मुझसे लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन, आमीन। ये 3 काम रुल कुछ करेगा। सबसे पहला काम वो मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन
उसकी इंतहा में मौत है। बहुत से ईमानदार लोगों के जहाज अबलीस के बहकावे की वजह से गर्क हो गए। बहुत से परस्तार उस लेवल तक ना पहुंच पाए जिस लेवल तक उन्हें जाना था, और वो नीचे रह गए क्योंकि उनकी रहनुमाई रुलकुस नहीं बल्कि इंसान कर रहे थे। बहुत से खादम दुनिया की रहनुमाई हासिल करते हुए नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने रुलकुस की रहनुमाई हासिल नहीं की। लिखा है वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और जब रुलकुस रहनुमाई करेगा तो वो गलती नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा। बहुत से लोग आज रहनुमाई हासिल करने के लिए दुनिया फालगिरों के पास, जादूगरों के पास, ये जो हाथ देखते हैं उनके पास जाती है, सितारे दिखाते हैं दुनिया के लोग, लेकिन रुलकुस आपका बेहतरीन रहनुमा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से आपकी रहनुमाई नहीं करेगा। वो दुनिया की मानित आपकी रहनुमाई नहीं करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, बल्कि यीशु मसीह से जो खबर उसे मिलेगी उसी खबर को वो आप तक पहुंचाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और इस रुलकुस के बारे में जिसकी बात खुदावंद यीशु कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, इसके बारे में नबियों ने पेशन गोइयां की। जब हम योएल 2 बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आखिरी दिनों में, और ये आखिरी दिन क्या है? ये आखिरी दिन उसी दिन से शुरू हो गए थे जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया उसी दिन से यीशु के वापस आने के मुंतजर हो गए, और उसने कहा जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। पिछले इतवार हम मेज में शरीक हुए थे। यहां पर यीशु की जिंदगी में रुलकुस के काम को देखें आप। खुदावंद यीशु मसीह, उसकी जिंदगी में रुलकुस का काम, खुदावंद यीशु मसीह के आने की नबूवतें, रुलकुस की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह का जन्म लेना, फिर यीशु मसीह के बपतिस्मे पर रुलकुस ने मोहर लगा दी। जब कबूतर की मानित रुलकुस आकर यीशु मसीह के कंधे पर बैठ गया, फिर यीशु को आजमाने के लिए लिखा रुलकुस उसे आजमाने के लिए बियाबान में ले गया। रुलकुस के काम को देखे, उनके आने से पहले उनकी पैदाइश, उनके बपतिस्मा लेना, उनका आजमाया जाना, और फिर लिखा है यीशु रुलकुस की कुदरत से भरा हुआ मुनादी करने लगा। हालेलुया। आप लम्हा लम्हा यीशु मसीह की जिंदगी में, यीशु मसीह की जिंदगी में रुलकुस को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यीशु मसीह और रुलकुस एक हैं। और मैं आज बता रहा हूं रुलकुस में एक होने के ताल्लुक से कि मैं और आप रुलकुस में एक हो जाएं। कैसे एक हो? हमारे ऊपर रुलकुस का मोहर हो, रुलकुस हमारी रहनुमाई करे, हम रुलकुस की कुदरत से भरे हुए मुनादी करें। और लिखा उसकी मसलूबियत में रुलकुस था, फिर रुलकुस की कुदरत से वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के आने से पहले, जन्म लेने, फिर
यीशु मसीह के बड़े होने, यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने, यीशु मसीह के मुनादी करने, यीशु मसीह के मसलूब होने, यीशु मसीह के जिंदा होने, यीशु मसीह के आसमान पर जाने और यीशु मसीह के रूह कुस के वादा को पूरा करने तक आप मुसलसल रूह कुस को यीशु की जिंदगी में देखते हैं। और आज उसी तरह की जिंदगी मुझे और आपको भी गुजारनी है। आज ईमानदार की जिंदगी में रूह कुछ काम करता नजर आना चाहिए। नौजवानों की ख्वाहिश हो, बेटियों बेटों की ख्वाहिश हो कि मेरी जिंदगी से रूह कुछ नजर आए। जब ईमानदार नई पैदाइश लेता है, रूह कुछ उसकी जिंदगी में आ जाता है। आमीन। रूह कुछ हमारे अंदर रहता है, ईमानदार के अंदर। फिर ईमानदार पर रूह कुछ मोहर करता है, उसे महफूज करता है। आपने देखा होगा एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है माल की किताब का। पलूस, अफलूस, पतरस रसूल दूसरे जो हैं बदरूहों को निकाल रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। 3000 लोग यीशु को कबूल कर लेते हैं। फिर कलाम सुनाया जाता है, 5000 लोग यीशु के पास आ जाते हैं। यहूदी सिकवा काहिन जो है, उसके बेटे जब ये देखते हैं माजरा, तो वो चाहते हैं हम भी इसी कुदरत से भरे हुए हों, हम भी इसी तरह काम कर रहे हों। और लिखा वो भी एक बदरू गिरता पर दुआ करना शुरू हो गए। और कहते क्या हैं, जिस यीशु की इबादत पलूस और अपलूस करते हैं, उसके नाम से हम तुम्हें कहते हैं कि निकल जा। और बाइबल में लिखा है कि उस बदरू ने उन्हें मारा कूटा, उनके कपड़े फाड़े, नंगा करके उन्हें भगा दिया। क्या वजह थी? रूह कुछ ईमानदारों पर मोहर करता है। यही बदरू अगर उसके सामने रूह कुछ से भरा हुआ ईमानदार होगा, तो वो बदरू उसके सामने उसे छूने भी नहीं पाएगी। और उसकी वजह क्या है? रूह कुछ ईमानदार पर मोहर करता है। आपको जब एक सील किया हुआ लिफाफा मिल जाए, सील किया हुआ, आप उसे नहीं खोलेंगे क्योंकि वो किसी का है। मोहर जब रूह कुछ आप पर कर देता है कि ये मेरा है, फिर इब्लीस और उसकी तासीरें और उसके मौखल आपको जरर नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि यीशु ने कहा, क्या कहा खुदा में यीशु मसीह ने? देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और कोई चीज हरगिज तुम्हें जरर नहीं पहुंचाए। रूह कुछ ईमानदारों पर मोहर करता है, उन्हें महफूज करता है। फिर रूह कुछ हमें लापालक बना देता है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। लेपालक का मतलब है गोद लिए हुए। फिर रूह कुछ हमें लेपालक बना देता। लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। वो लेपालक बना देता है। रूह कुछ हमें भरता है, तुम में से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। वो हमें भरता है। फिर रूह कुछ असल में कलाम का मुसन्नफ है। कलाम को लिखने वाला, लिखवाने वाला रूह कुछ है। फिर रूह कुछ हमें कलाम की समझ देता है, कलाम की वजाहत करता है हमारे लिए। रूह कुछ ईमानदारों की रहनुमाई करता है। रूह कुछ ईमानदारों को मसा करता है। रूह कुछ ईमानदारों को मुकद्दस ठहराता है, पाक करता है। रूह कुछ ईमानदार की जिंदगी में फल लेकर आता है, फलदार उसे करता है। क्या लिखा है? मगर रूह का फल
मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, खुशी, परहेजगारी, ये रूह के फल हैं। अगर आपकी जिंदगी में रूह का फल नहीं है, आप चिड़चिड़े, गुस्से में रहने वाले, गालियां देने वाले, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले, तो समझ जाएं कि मैं रुल कुछ से भरा हुआ नहीं हूं। ये पाक रूह नहीं है, ये कोई बद रूह है जो मुझे अबलीस इस्तेमाल कर रहा है लड़ाई झगड़े के लिए, नाफरमानी के लिए। आप अगर रुल कुछ से भरे हुए हैं तो आप में से फल जारी हो जाएगा, मोहब्बत का फल। लोग आपको देख के कहेंगे यार भैन ते बदल गई पूरी दी पूरी, किन्ना लड़दी हुंदी सी। और आप कहेंगे ये रुल कुछ का काम है। किसका काम है ये किसका काम है? रुल कुछ का काम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर रुल कुछ ईमानदार को कुव्वत देता है। जब रुल कुछ तुम पर नाज़िल आए होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। रुल कुछ ईमानदार को कुव्वत देता है। कर्जों पर गालिब आने के लिए कुव्वत, बीमारी पर गालिब आने के लिए कुव्वत, बदरूहों पर गालिब आने के लिए कुव्वत, नस्ली लानतों पर गालिब आने के लिए कुव्वत, बेरोजगारी पर गालिब आने के लिए कुव्वत, गुनाह पर गालिब आने के लिए कुव्वत रुल कुछ आपको देगा। आप जितनी मर्जी दूसरी दुआएं करते रहें, आपकी पहली और अव्वल तरजीह दुआ ये होनी चाहिए, खुदा मुझ पर रहम कर और मुझे रुल कुछ से भर दे। वो आपका स्टेटस, आपका मर्तबा बदल देगा। आप मछेरे होंगे और वो आपको आदमगीर बना देगा। आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपको वैल्यूबल बना देगा। आपको लोग ना काबिल ना अहल समझते होंगे, वो आपको काबिल और अहल बना देगा। जब पतरस कलाम सुना रहा है, बातें कर रहा है काहिनों के साथ, तो वो कह रहे हैं क्या ये अनपढ़ और ना वाकिफ लोग नहीं है? लेकिन ये तो बड़ी आदनाई की बातें कर रहे हैं। रुल कुछ ये सब कुछ करेगा। बहुत दफा मैं और आप जान तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं कुछ कामों के लिए, माली बरकतों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती की बरकत के लिए, औलाद की बरकतों के लिए हम जान तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो मंबा, वो जो सर चश्मा है जिसमें से ये सब कुछ निकलना है, जिसके वसीला से सब कुछ मिलना है, हम उसमें एक नहीं होना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप रुल कुछ से एक हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी बदले हुए देखेंगे। मेरे से तो रूह एक ही है लेकिन काम बहुत से करता है। आमीन। बिजली एक ही है, कई उससे एसी चला रहे होते हैं, कई पंखे चला रहे हैं, कई जनाब उसी बिजली से बल्ब जला रहे हैं, कई बहनें जो हैं वो उसी बिजली की तार में वॉशिंग मशीन का स्विच लगाती हैं और कपड़े धो रही होती हैं, कई पानी की मोटर उसी बिजली से चला रहे होते हैं। बिजली एक ही है, काम मुख्तलिफ आप उससे ले रहे हैं। रुल कुछ एक ही है लेकिन वो काम बहुत से करता है। इसलिए आप इस बात को समझ जाएं। आप जरूरत की बुनियाद पर बिजली को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप जरूरत की बुनियाद पर आप रुल कुछ आपकी जिंदगी में काम करता है। आमीन, आमीन। आए एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। रुल कुछ का पाना जो है ईमानदार की जिंदगी में रूह का एक तजुर्बा है। जब हम दुआएं करते हैं, रुल कुछ हमारी जिंदगी में आता है। और रुल कुछ का बक्तुस्मे का मतलब है रुल कुछ में डूब जाना, रुल कुछ में डूब जाना। अब आपकी हस्ती नजर ना आए, आप डूबा हुआ शख्स के ऊपर क्या नजर आता है? जब कोई शख्स पानी में डूब जाता है क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? पानी। हालेलुया। जब आप रूह में डूबे होंगे तो फिर क्या नजर आएगा? रुल कुछ नजर आएगा। लोगों को रुल कुछ नजर आएगा, अनॉइंटिंग मसा नजर आएगा। लोगों को आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत नजर आएगी। कब?
जब आप रूल कुश में डूबे हुए, जब आप रूल कुश में डूबे हुए होंगे, आप पानी का गिलास लें तो क्या मतलब है? पानी गिलास के क्या है? अंदर है। पानी गिलास के क्या है? लेकिन अगर आप पानी के तालाब में हो तो क्या होगा? इसका मतलब मैं पानी के तालाब के अंदर हूं। समझ आ रही है बात की? इसलिए बड़े आप इसको समझना है, हमें रूल कुश के अंदर होने की जरूरत है। हम रूल कुश में जिंदगी गुजारें। जब आप कहते हैं खुदावन मेरे बंद बंद को भर दे, आप कहें खुदावन तेरा रूल कुश मुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में ले ले, मुझ में से तेरे रूल कुश की नदियां जो हैं वो बहनी शुरू हो जाए। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा जो बदन है वो रूल कुश का मकदस है, घर है उसका। रूल कुश की कुदरत जो है वो जाहिर तब होगी जब हम रूल कुश से भरे हुए होंगे। और जब आप रूल कुश से भरे हुए सिकंदराबाद में अपने अजीजों कारब के पास, अपने नौकरी पर, अपने काम की जगह पर, अपने स्कूल में, जहां भी आप जाएंगे आएंगे उठेंगे बैठेंगे, आपकी जिंदगी में से रूल कुश नजर आएगा। तलाब चो निकल के जो बंदा जाता है ना किसी पासे, तो पानी भी नाल नाल ही जाए जाता है। आमीन। आप जहां बैठेंगे असर छोड़ेंगे। शिगिर्द जहां होते थे असर छोड़ देते थे। इवन यहां तक के लोग अपने बीमारों को रास्ते पे डाल देते थे कि यहां से खुदा का बंदा पतरस गुजरेगा, तो उसका साया पड़ने से लोग क्या करते थे? आपकी जिंदगी में रूल कुश इतनी कुदरत रखता है। आए हम अपनी ख्वाहिशात को आज तरतीब दें। आपकी ये ख्वाहिश कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास प्राडोस, मेरे पास मेरा इन्फ्लुएंस दुनिया पर हो, आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश कि मैं रूल कुश की कुदरत से भरा हुआ यीशु को जलाल देने वाला बन जाऊं, तो आप हैरान हो जाएंगे। वो आपको खाक पर से उठाएगा और उम्रा के दरमियान बैठाएगा। वो आपकी जिंदगी, आपके हाल, आपके मुस्तकबिल को बदल देगा। वो आपके रोजगार कारोबार को बदल के रख देगा। वो आपकी सोच, आपके ख्याल, आपकी देखने की सलाहियत को बदल कर रख देगा। वो आपकी जिंदगी में कुदरत वाला काम करेगा और आप खुदा को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें, चलो में खुदावंद के हुजूर